اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان چودھری شہباز رائی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عوام سے حکام تک۔ ناظرین، کوہ نور نیوز کی ہمیشہ سے یہ ریت رہی ہے، ہمیشہ سے یہ کاوش رہی ہے کہ حق اور سچ کا ساتھ دیا جائے، کمزور مظلوم کا ساتھ دیا جائے، امیر طاقتور اور جگیردارانہ نظام کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جائے۔ ناظرین، ہمیشہ کی طرح کسی اہم ایشوز پر، کسی اہم معاملات کو ہم ڈسکس کرتے ہیں، اس کو عوام سے لے کے حکام تک، حکام سے اعلیٰ حکام تک لے جا کر اس کو حل کروانے میں اپنا اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح ناظرین دیکھنے میں آیا کہ مزدہ جو ایسوسی ایشن ہے، منی مزدہ ایسوسی ایشن، جس کے ساتھ لاکھوں افراد جڑے ہیں، ہزاروں اس میں ڈرائیور مالکان جڑے ہیں، ان کو ہم نے احتجاج کرتے دیکھا، کبھی بند روڈ پر، کبھی بابرا ٹون پر، کسی چوراہے پر، کبھی کسی موٹر وے کے جہاں ٹھوکر بائی پاس پہ دیکھا جائے۔ تو ہم نے جب ان سے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ جو مزدہ ایسوسی ایشنز ہیں یہ حکومت وقت کو ٹیکسز دیتے ہیں، ٹول پلازے دیتے ہیں، اور جو رجسٹریشن ہے، رجسٹریشن کرواتے ہیں، اس ٹائم ٹیکس ادا کرتے ہیں، ٹوکن ٹیکسز دیتے ہیں۔ اس کے باوجود جب سرکار کوئی بھی معیشت جو ہے، معیشت جو ان سے چلنے کے بعد، جب فنڈ جمع کرنے کے بعد جب آگے جایا جاتا ہے تو ان کو کیا سہولیات دی جاتی ہیں، تو دیکھنے میں آیا سہولیات تو دور کی بات ہے، بجائے ان پہ شب خون مارا جاتا ہے، ان کے حقوق جو ہیں ان کو دبایا جاتا ہے، اس کو ختم کیا جاتا ہے، ان کو تھریڈ کیا جاتا ہے۔ آئے دن یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ جب یہ احتجاج کرتے ہیں تو ان کے ساتھ مذاکرات کرنے کے بعد ان پر ایف آئی آر درج کی جاتی ہیں۔ ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا معاملات ہیں، کیوں یہ اس طرح اتنے ٹیکس ادا کرنے کے بعد بھی، اور جس کی وجہ وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی صاحب، یہ آپ کا پنجاب میں اگر کوئی کریڈٹ، کوئی اچھا کام ہوتا ہے تو اس کا بھی کریڈٹ آپ کو دیا جائے گا۔ اگر کسی کے ساتھ ناانصافی کی جائے، اگر کسی کے ساتھ زیادتی کی جائے، اگر رشوت کا بازار گرم کیا جائے تو اس کے ذمہ دار بھی آپ ہیں، نہ کہ انتظامیہ آپ کے انڈر ہے۔ آپ اس پنجاب کے ذمہ دار ہیں، آپ نے ان سے ووٹ لیے ہیں، پنجاب کی عوام نے آپ کو چناؤ کیا آپ کا، اس کے بعد ان کی مشکلات کا ازالہ کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں شیر علی چودھری صاحب جو کہ پریزیڈنٹ، مرکزی پریزیڈنٹ ہیں اس ایسوسی ایشن کے۔ ان سے پوچھیں گے ان کو کیا کیا معاملات ہیں۔ ہمارے میں وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر ٹرانسپورٹ صاحب سے اور ڈی جی ایکسائز صاحب سے ایک کہانی آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو ایکسائز منسٹر صاحب ہیں، ڈی جی ایکسائز صاحب ہیں، آپ کی ایک کہانی جو کہ آپ کی گورنمنٹ سے پہلے کی گئی ہے، لیکن اگر اس کا انصاف آپ کی گورنمنٹ میں نہیں کیا گیا تو اس کے ذمہ دار بھی آپ ہیں۔ ان کے مزدوں کی رجسٹریشن کی گئی جس کو فوجی فریم کا نام دیا گیا۔ جو مزدور، یہ جو مزدہ کے ڈرائیور ہیں، جو مالکان ہیں، یہ جناب اعلیٰ آپ کی طرح ٹھنڈے کمروں میں نہیں رہتے، سردیوں میں گرم ہیٹروں میں نہیں رہتے، یہ اپنے بچوں کے لیے تپتی گرمی میں کام کرتے ہیں، سردیوں کی سخت راتوں میں روڈوں کے اوپر اپنے بچوں کا رزق حلال کو تلاش کرنے کے بعد ان کو کھلاتے ہیں، ان کی پرورش کرتے ہیں۔ آپ یہ سارا کچھ بند کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کے جو ایکسائز میں جو کالی بھیڑیں ہیں، جو کرپشن میں ملوث ہیں، آپ کے زیر سایہ چلتے ہیں۔ سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ ایک کلرک سے لے کر ڈی جی تک سب کو مینیج کیا جاتا ہے، جس میں پچھلے دنوں ایک بڑا ہاٹ ایشو تھا کہ ان کی رجسٹریشن کو کینسل کیا گیا، منسوخ کیا گیا۔ وائی؟ کس وجہ سے کیا گیا کہ پہلے ان کی رجسٹریشن کی گئی، ان سے مال لیا گیا، پھر اس کو مافیا نے آگے ٹرکس کو، گاڑیوں کو، مزوں کو، ویکلز کو بیچا، اس کے بعد جب بیچنے کے بعد غریب عوام تک اپنا روزگار کو بنایا گیا، اس کے بعد اس کو کینسلیشن کر دی گئی، جس میں بڑے بڑے نام بھی آئے، وزیروں کے نام آئے، جس میں ایک بڑا نام خرم گجر کا آیا جو کہ آج کل ایک معزز شخصیت اور ایک ٹک ٹاکر ہیں۔ اس کے بعد دیکھا جائے تو اینٹی کرپشن کے اندر ایف آئی آر درج کی گئی، وہ ایف آئی آر اس طرح درج کی گئی کہ جس طرح ان کو کلین چٹ دینے کے لیے اربوں روپے کا سکینڈل، نہ 1 روپیہ اینٹی کرپشن ریکور کر سکا، نہ حکومت وقت کر سکی، نہ ہی پنجاب پولیس کر سکی۔ تو اس کے بعد جو تقریباً 7 سے 8 ہزار ایسی ویکل مزدے ہیں جن کو کینسل کر دیا گیا۔ میں جناب وزیر اعلیٰ آپ کے آگے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، یہ جو ڈرائیورز ہیں جنہوں نے 1-1 روپیہ خون پیسے کی کمائی جمع کر کے اپنے لیے محنت مزدوری کا ایک ذریعہ تلاش کیا، آپ لوگوں نے جو نوکری
नौकरियों का वादा किया, जो मईशत का वादा किया, आप अपने किसी एक वादे में वफा नहीं कर सके। उसके बाद जिन्होंने अपनी एक एक रुपया जमा करने के बाद, मेहनत मजदूरी करने के बाद अपने लिए कोई रोजगार का इंतजाम किया, उसको महकमा एक्साइज जो है उसको कैंसिलेशन कर देती है। उस कैंसिलेशन करने के बाद ये जिम्मेदारी आपके ऑफिसर्स की है। अगर कोई बंदा रजिस्ट्रेशन करवाता है, महकमा एक्साइज को पैसे पे करता है, चालान पे करता है, उसके बाद महकमा एक्साइज उसको रिटर्न टू ओनर फाइल वापस करती है, नंबर प्लेट्स इशू करती है। उसके बाद जब वो रोड पे वही लोग जो इसको रजिस्टर करते हैं, उसके बाद उसकी पकड़ दकड़ शुरू कर देते हैं। जनाबे आला, ये कोई जंगल का कानून नहीं है। अगर आपके महकमा एक्साइज की काली भेड़ों ने पैसे लेके चंद टगों की चमक के जरिए उनको रजिस्टर किया, उनको फाइल रिटर्न की, उनको नंबर प्लेटें इशू की, उसके बाद कैंसिलेशन की जिम्मेदारी महकमा एक्साइज की है। ये किस तरह ये लॉ नहीं बनता? अगर उसमें कोई कागजात में कोई कमी थी, कोई कोताही थी या नामुकम्मल थे, तो उसके बाद जो जिम्मेदारी, अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया महकमा एक्साइज ने, तो उसकी जिम्मेदारी महकमा एक्साइज की, ना कि उस गरीब की जिसने एक एक रुपया जोड़कर अपने बच्चों का रोजगार की बनाया, उसको मेहनत मजदूरी के लिए रोड पे निकाला, उसके बाद उनकी पकड़ दकड़ शुरू हो गई। तो इन सारे बहुत से मामलात है। हम जो प्रेसिडेंट है शेर अली चौधरी साहब, इनसे पूछेंगे कि आपको क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और आए दिन जो आप एहतजाज करते हैं, ये एहतजाज किस लिए करते हैं? इंतजामिया, वजीर आला पंजाब, डिप्टी कमिश्नर साहब, सीटीओ साहब, जिनके साथ आपके साथ रोज आए दिन मुज़ाकरात होते हैं, कभी आप उनके पास जाते हैं, कभी वो आपके पास आते हैं, उसके बाद भी अगर FIR दर्ज की जाए तो ये क्या मामलात है? तो जनाब, हम आपको वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। और चौधरी साहब, ये बताइएगा, जिस तरह आपने एहतजाज भी किए, ये एहतजाज की ज़रूरत क्यों पड़ती है आपको? जी, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप हमारे इस प्रोग्राम को हाईलाइट करने के लिए तशरीफ़ लाए। आपके बहुत शुक्रिया। हमेशा आपने मीडिया ने हमारे जो मामलात हैं उनको हाईलाइट किया। सबसे पहले तो मैं गुजारिश करूंगा कि हमारे 7500 मज़दा गाड़ी जिन्होंने एक्साइज वालों ने कैंसिल किया है, इसको फिल फॉर ओपन होना चाहिए। जब ये गाड़ियां हमने ख़रीदी, इनकी जो फाइलें थी, हम महकमा एक्साइज के पास लेके गए, ये हमने गाड़ी खरीदी है, इतनी इसकी पेमेंट है, ये हमारे पास रूट है, ये नंबर प्लेटें हैं, इसका हमने फीस दी, उन्होंने हमारा गाड़ी ट्रांसफ़र कर दी। 6 साल बाद पता चला कि गाड़ी रजिस्टर कैंसिल हो गई है। क्या हुआ, इसकी जो वेरिफिकेशन है वो गलत है। पहले भी वेरिफिकेशन, चौधरी साहब, वेरिफिकेशन करना तो इदारे का काम है, जो एंड यूजर क्लाइंट है, खरीदार, उसकी जिम्मेदारी तो नहीं है ये? सर, जब हमने गाड़ी खरीदी, वेरिफिकेशन फाइल में मौजूद है, उन्होंने वेरिफिकेशन चेक की, हमारा गाड़ी नाम कर दी। 6 साल बाद ये कहना कि आपकी वेरिफिकेशन गलत है, ये कितना बड़ा जुर्म है हमारे ऊपर। नहीं, मे भी अगर वेरिफिकेशन गलत भी है तो अमले की मिली भगत के अलावा तो गाड़ी रजिस्टर नहीं हो सकती आपकी। लाखों रुपए DG तक जाते हैं, करोड़ों रुपए DG तक जाते हैं, उनके घर जाते हैं। उस वक्त उनको पता नहीं था। अभी याद है 6 साल बाद, इसमें जब मैंने गाड़ी आपको दी, आपने आगे दे दी, अगले ने आगे को दे दी, लोगों के कत्लो गार शुरू हो गई है। 3 मर्डर हो चुके हैं ये मसदे के लेन देन के मामले में। उतर भाई, आपने मुझे गाड़ी 2 नंबर दी है, लड़ाई हुई, 2-3 मर्डर हो चुके हैं। चौधरी साहब, आप ये बताइए, 15 अरब रुपए की करप्शन के बाद जब आप जाते हैं तो फिर भी जिल्लत और रसवाई भी आप लोगों का मुकद्दर है जिन्होंने पे ऑफ किया हुआ है। जी, मैं एक तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमने 3 बंदे पकड़ के दिए हैं जो 50-50 हज़ार हमारे थे रिश्वत ली, जिन्होंने, हमने उनके खिलाफ एप्लीकेशन दी कि इन पे मुकदमे दर्ज किए जाएँ, उनको इन्होंने माफ़ कर दिया, छोड़ दिया, हमारी एक ना सुनी। उन्होंने माना कि हमने पैसे लिए हैं, गाड़ी कैंसिल की है, हमने गाड़ी रोकी है, हमने उसे डिमांड की है लाख की, ड्राइवर ने 50,000 दिया है, मालिक ने 50,000 भेजा, उसके एजी अकाउंट में भेजा है, तो छोड़ दिया गया। ये ड्राइवर्स की तो मंथली जो इनकम है वही 30, 40, 50 हज़ार रुपया होती होगी। सर, वो पीछे उसके मालिक ने पैसे भेजे, एजी लोड करवाए उन्होंने, एक्साइज वालों ने लिए हैं पैसे। तो जिनके खिलाफ आपने कंप्लेंट्स की थी वो दोबारा उसी जॉब पे अपनी स्टैंड है, हमारी किसी ने सुनी नहीं। उसके बाद हमारी 5 गाड़ियां मुख्तलिफ थानों में बंद करवाई, एक्साइज ने बंद की हुई हैं, वो नहीं छोड़ रहे, बदमाशी कर रहे हैं। ये रजिस्ट्रेशन की वजह से कि आप इस वजह से आपकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल है।
डीजी ने वादा भी किया हमें गाड़ियाँ छोड़ देते हैं, वो पीछे कहते हैं पैसे दें तो हम छोड़ेंगे वरना नहीं छोड़ेंगे। लेटर आ रहा है, लेटर जा रहा है, लेटर आ रहा है, लेटर जा रहा है। लाहौर एक्साइज में लेटर जा रहा है, डीजी ऑफिस में लेटर जा रहा है, तो लेटर आ रहा है। ऐसे ही हमें तक डीजी एक्साइज साहब, आपसे मुदबाना गुजारिश है, हम भी रिक्वेस्ट करते हैं, ये तकरीबन अगर 7 से 8 हज़ार गाड़ियाँ हैं तो इसके 2 शिफ्ट में अभी अगर ड्राइवर किए जाए तो 16-17 हज़ार ड्राइवर बनते हैं, उनके 8 से 10 हज़ार मालकान बनते हैं। अगर तो 16 हज़ार ड्राइवर इसके साथ जुड़े हैं तो 16 हज़ार के साथ तकरीबन कई लाख अफराद की जो फैमिली हैं वो उनका रिज़्क जुड़ा है इसके साथ। अगर आप इस पर थोड़ी सी भी तवज्जो दे दें, एक नज़र अगर आप इस पर फरमा दें, अगर आप अपने कीमती टाइम में से, अगर आप अपने सर्दियों में जो आप गर्म कमरे हीटर लगा के कॉफ़ियाँ पी जाती हैं, गप्पे लगाई जाती, उसमें से इन मजदूरों के लिए अगर आप 10 से 15 मिनट में एक ऑर्डर जारी कर दें कि फिल वक्त तक जब तक 15 अरब रुपए की करप्शन, तो आपने, मेरा ख्याल है कि महकमा एंटी करप्शन इतना बिजी है कि वो ये तो छोटी इंक्वायरी है, 15 अरब जनाबे आला 15 अरब रुपए की इंक्वायरी है, इसको री इंक्वायरी किया जाए। जो जो इसमें मुलव्वस है, जो FIR दर्ज की गई वो हमने पढ़ी तो उसमें लगता ऐसे है कि FIR इसलिए दर्ज की गई कि जो बंदे इसमें मुलव्वस हैं उनको क्लीन चिट दी जाए। तो लिहाजा इनका जो जायज मुतालबात है कि कम से कम इनकी गाड़ियों को कोई रोड पर रोके तो ना। अगर फिल वक्त आप इस तरह, हम एक सजेशन देते हैं कि फिल वक्त इनकी ट्रांसफर बंद कर दी जाए, लेकिन इनके टोकन टैक्सेस लिए जाएं, इनकी गाड़ियों को रोड पर चलने की इजाजत दी जाए ताकि इनके बच्चों का रोजगार ना रुक सके। तो जो साहब आप ये बताइए, लास्ट टाइम आपकी डीजी एक्साइज साहब से कब कोई मीटिंग, कोई मुलाकात हुई है? हमने पंजाब सर के सामने धरना दिया तो उन्होंने बुला लिया। हमजा साहब उस वक्त थे वज़ीर पंजाब। बुलाने के बाद उन्होंने हमें मिनट्स दे दिए कि आपकी गाड़ियाँ अगले 2 हफ्तों में या 1 हफ्ते में छोड़ देते हैं, इसका तरीका का बनाते हैं। डीजी के हुक्म के मुताबिक डिप्टी डीजी हैं जो बैठे हैं वो रोज़ बुला लेते हैं, कभी मिलते नहीं। अभी वो हमारी गाड़ी नहीं छोड़ रहा है। मेरी गुजारिश है कि उन गाड़ियों को फिल फोर छोड़ा जाए। वो फैमिली भूखी मर रही हैं, उनके बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, उनके घर में फाका पड़ा हुआ है, उनकी गाड़ियाँ फिल फोर छोड़ी हैं और जो हमारी 7500 गाड़ी को फिल फोर ओपन किया जाए। आप प्रेसिडेंट हैं, आपके पास तो आए दिन फिर इसके केसेस आते रहते होंगे, लेन देन के मामला। अगर किसी ने किसी को गाड़ी बेची है, वो ट्रांसफर नहीं होगी तो वो जिस बेचने वाले को कहेगा, बेचने वाला पीछे बेचने वाले को कहेगा, जो एंड यूजर है वो एक्साइज में जाएगा तो उसको कैंसिलेशन मिलेगी। सर देखें कि हम तो इस्तेजाज कर सकते हैं, हम एप्लीकेशन दे सकते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, ले डीजी एक्साइज को शर्म नहीं आ रही, वो हमारी बात नहीं सुन रहा। हम बहुत परेशान हैं। हमारे ट्रांसपोर्टर, हमारे ड्राइवर, लाखों हज़ारों लोग बेरोजगार होकर बैठे हुए हैं इस मसलों की वजह से। आप नहीं समझते कि यहाँ पर लगता ऐसे है कि पाकिस्तान में अब कोई भी जायज़ मुतालबात बगैर एहतजाज के, धरनों के, उसका कोई हल नहीं मिलता? सर देखें, कल हमने धरना दिया है अपने हक की खातर, अपने तहफ़्फ़ुज़ात की खातर, जो हमारे जायज़ मुतालबात थे। रात को CTO साहब ने कहा कि हम आपके बिल्कुल जायज़ मुतालबात है, हमें पूरे करवाते हैं, आपका स्टैंड लेना हक है, हमें स्टैंड देना हक है, लेकिन मैं नहीं दे सकता, मैं आपकी फ़ाइल आगे मूव कर देता हूं। तो आपका बिल्कुल जायज़ मुतालबा है, ये गवर्नमेंट को मानना चाहिए, हम भी इसको मानते हैं, इसकी कमेटी बनाते हैं। आज हम वो फाइल लेके जाना था, कागज़ इकट्ठे कर रहे थे, रात को हमारे ऊपर FIR दी गई 29 लोगों पे, हमारे ट्रांसपोर्टर पे। क्या गना है उनका, क्या उन्होंने नुकसान? यानी कि आपको एक कारोबारी, एक मजदूर तबके से आपको जराइम पेशा अफराद की लिस्ट में जारी कर दिया, शामिल कर दिया गया है। लेकिन ये हमारे ऊपर हज़ारों FIR दे दें, लेकिन बता के दें। जब हम इत्तेजाज में बैठे थे, काम बनता था कि हमें गिरफ्तार करते हैं, हमारे ऊपर FIR देते, टेबल क्या बैठना था। जब मुज़ाकरा तो कामयाब हो गया, बाद में FIR देने का क्या फ़ायदा? ऐसा होता है कभी? तो आपके ये हमारा ड्रामा नहीं हुआ? एहतजाज जो थे, कितने लोग शामिल थे एहतजाज में? हमारे पास 500 गाड़ी थी कल, जो जिसका इशूज़ था, और 500 गाड़ी के साथ 2-2 लोग, ड्राइवर कनेक्टर, 1000 बंदा वो था, और हमारी एसोसिएशन के लोग थे, बाकी ट्रांसपोर्टर थे। कम से कम 2000 बंदा हमारे साथ था कल। तो FIR कितने लोगों पे? 29 लोगों पे। तो आपकी अभी किसी आला हुकाम से बात हुई कि हमारे मुज़ाकरात जो थे वो कामयाबी की तरफ थे, तो आपने FIR बंद, रात के अंधेरे में FIR दर्ज कर दी हम पे? देखें कि हमारा अपना अभी 3 बजे अजलास है, अजलास में फैसला करेंगे क्या करना है। इंशाल्लाह हम इनको अच्छा
सबक देंगे कि किसी ट्रांसपोर्टर के साथ, कारोबारी बंदे के साथ ऐसा ज़्यादती नहीं करनी। इंशाल्लाह पीर को हम फैसला करने जा रहे हैं, जो मुझे लग रहा है कि हमारे फैसला यही होगा। हमारी चंद लोगों से बात हुई है दौर दौरान से, तो उसमें हम लाहे अमल देंगे। पंजाब के तमाम दाखिली खारजी रास्ते, लाहौर के तमाम दाखिली खारजी रास्ते बंद कर एहतजाज करेंगे, पूरा ट्रांसपोर्ट पहिया जाम करेंगे इंशाल्लाह। तो सर देखें, अगर ट्रांसपोर्ट बंद की जाती है उसमें नुकसान तो आम आवाम का है। अगर कोई घी, दाल, चीनी, कोई सब्जियां, फल अगर दूसरे शहरों से यहाँ तक आते हैं तो वो भी आवाम का नुकसान है। अगर आप एहतजाज करेंगे, कोई भी लाहौर की एंट्रेंस को बंद करेंगे, तो उसमें तो ये तो अपने कमरों में बैठे हैं, अपने ऑफिस में बैठे हैं, इनको पता होगा ये नहीं आएंगे। आपसे कोई मुज़ाकरात करने भी आता है कि सिर्फ आवाम ही ख्वार होगी? फिर भी सर ऐसा है कि एप्लीकेशन देते को सुनता नहीं, इhtजाज के बगैर और कोई रास्ता नहीं और कोई ऑप्शन नहीं, क्या कर सकते हैं? नहीं तो एहतजाज आप ऐसी जगह पर करें जिस तरह के आप अगर लाहौर से ठोकर बंद कर देते हैं, उसमें किसी वजीर, मशीर, डीजी का तो आना जाना नहीं है, वहाँ से तो मेरे आपके जैसे मजदूर लोग ही आए जाएंगे। तो परेशानी तो उनके लिए, कुछ पेशेंट भी होते हैं बीच में, किसी को कोई एमरजेंसी है, किसी की कोई शादी है, कोई दुख तकलीफ है, तो आप बेहतर ये है कि जो अपने आप इजलास में लाए अमल अपनाएं, वो ऐसी जगह का अपनाएं कि जिससे आपको कोई बेनिफिट्स मिले और आवाम को नुकसान ना हो उसमें। सर आप समझे, थोड़ी सी बात है कि अगर हम बाबू साहब से रोड ब्लॉक करते हैं ना, कोई और रास्ता जाने वाला नहीं है मोटरवे पे। यहाँ पे एम्बुलेंस अभी होंगी, मरीज भी होंगे, अफसराने वाला भी होंगे। हमने कल एक छोटे से एक कोने में एहतजाज किया जहाँ पे किसी को परेशान है, हमारा रिकॉर्ड एहतजाजी रिकॉर्ड हो जाए, उसके बावजूद इन्होंने हमारे ऊपर एफआईआर दे दी है। हमने ठोकर का फैसला किया था, लेकिन हमने ये सोचा कि हम 12 में पहुंचेंगे, 12 में मोटरवे खुलेगा, लोग इंतजार कर रहे होते हैं, लोग ख़राब होंगे, जलील होंगे, ये अच्छी बात नहीं है। हम रिलीफ दिया इन लोगों को, लेकिन उसका नतीजा ये निकला है। इंशाल्लाह अगला जो लाहे अमल होगा, लाहौर 12 मकाम पे बंद होगा, यानी कि आप टोटल लाहौर को लॉक करेंगे। और ये हमारी फिर सुन भी लेते हैं, हमारी मान भी लेते हैं। हमारे जो रिकॉर्ड है एहतजाज का वो इनके पास मौजूद है, तमाम पिछली हुकूमतों के पास, पिछली इंतजामिया के साथ मौजूद है। हम फिर किसी मानते भी नहीं जब तक हमारे मुतालबा नहीं माने जाते। हम रात को थोड़ा लाइट लिया, इन उसका नतीजा ये दिया है, जब तक ये हमारी एफआईआर वापस नहीं लेंगे हम इस चैन से नहीं बैठेंगे और लाहौर के कोने कोने में एहतजाज होगा इंशाल्लाह। जी नाजरीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे, मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। अच्छा जोई साहब, ये बताइएगा कि जिस तरह आपका एक तो मेजर जो इश्यूज़ है वो ये है कि जो आपकी गाड़ियाँ कैंसिल हुई हैं जिससे लाखों अफराद का रोज़गार, किचन्स जुड़े हैं, उसके बाद जो आपको क्या क्या इश्यूज़ हैं जो कि आपको एहतजाज की तरफ जाना पड़ता है, धरनों की तरफ जाना पड़ता है, आला अफसरान के ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते हैं, क्या क्या इश्यूज़ हैं आपके? जी हमारे जो इश्यूज़ है वो तो लाखों हज़ारों इशू हैं, लेकिन जो मेजर इशू हैं उसमें ये 7500 गाड़ी को ओपन किया जाए, इसको क्लियर किया जाए। इसके साथ साथ जो हमारी पार्किंग है, तमाम बस अड्डों को, कंटेनर गड्ढों को, बेडफोर्ड गड्ढों को पार्किंग स्टैंड मिले हैं, अड्डे मिले हैं, हमें कोई अड्डा नहीं दिया गया मजदा वालों को। इस वक्त 90% गाड़ियाँ जो फ्लीट है वो मजदा का है, बेडफोर्ड भी ख़त्म हो चुकी है, ट्राले लाहौर में जा नहीं सकते, सिर्फ मजदा गाड़ी काम कर रही है पूरे पाकिस्तान में और पंजाब में। एक गाड़ी खड़ी करने के लिए स्टैंड नहीं है। नहीं, स्टैंड हुकूमत वक़्त के पास इतनी सारी सरकारी जगहें जो पड़ी हैं जो किसी करामद नहीं है, उसका कोई क्राइटेरिया बनाया जाए, आपके साथ कोई उसका रेंट कोई इस तरह का मैनेज करने, वो भी आप तैयार हैं रेंट वगैरह पे करने को? देखें सर, ये तो गरीब लोग हैं जो गाड़ियों वाले हैं, रेंट नहीं देते थे लेकिन ये टैक्स देते हैं। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा टैक्स दे रही इंडस्ट्री सी ट्रांसपोर्ट है। अगर इतना टैक्स देने के बावजूद फिर भी हमें किराए पे लेनी है तो उसका काम करने का क्या फ़ायदा है? नहीं, अगर गवर्नमेंट आपको, आला हुकाम जो है, कोई सजेशन, कोई आपको इस तरह कहें कि हम कोई जगह है जिस तरह उसका कोई माइनर सा किराया तय कर दिया जाए, उसका सारा एक बंदा इकट्ठा करके तो फिर अगर उसको पे ऑफ कर दिया जाए, इस तरह भी आप तैयार होंगे? कोई ऐसी सूरत बन जाए कि उसको रेंट पे लिया जाए जो
थोड़े पैसों में हमें वो खरीदने का किस्तों पे दे दें, ये तो चल सकता है। यानी कि आपकी तरफ से ये भी ऑप्शन मौजूद है कि अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं देते तो कोई माइनर सा किराया रख के कि जिससे आपकी गाड़ियां भी बाहिफाजत खड़ी हों, लोगों को भी पता हो कि ये अड्डा है मजदे का, यहाँ से मिलेगा, आपकी गाड़ियां भी बाहिफाजत हों और आपको पता हो कि ये जो स्टैंड है ये मजदा ट्रक के लिए हुकूमत की तरफ से मुहैया किया गया है। सर हम कुछ मिनिमम पेमेंट भी देने को तैयार हैं, लेकिन जगह मिल जाए उसके बाद फ़ायदा क्या होगा। जो हमारे ट्रक खड़े हैं रोडों में, चौकों चौराहों में, जो ट्रैफिक धर्म भरम होती है, जो हमारी हर रोज़ ट्रैफिक पुलिस पर लड़ाइयाँ होती हैं, वो तमाम चीज़ें इशू ख़त्म हो जाएंगे हमारे। अच्छा, कस्टम के भी आपके इश्यूज हैं? कस्टमर के इशू हैं। एक बंदा हमें फ़ोन करता है, भाई गाड़ी भेजें, हमें फ़लाँ जगह से फ़लाँ जगह माल भेजना है, मिस्त्री शाह से बंद रोड पे माल भेजना है। जब हमारा ड्राइवर जाता है, हमारी गाड़ी जाती है, तो उसको नहीं पता ये जो माल है ना कस्टम शुदा है या कस्टम शुदा है, तो वो अपना माल लोड करके जब गोदाम से निकलता है साथी पकड़ लेते हैं, डिमांड करते हैं 1,00,000 2 लाख की, दे दिया ठीक है, ना दिया तो FIR हमारे ड्राइवर के ऊपर, हमारी गाड़ी के ऊपर। जो माल का मालिक है, जो गोदाम वाला है, वो घर में सोया है, उस पर FIR नहीं, हमारे ड्राइवर पे FIR, हमारी गाड़ी पे FIR। हमारा मुतालबा ये है कि जो हम माल लोड करने जाते हैं, हमारे ड्राइवर को नहीं मालूम कि इसके कागज़ हैं नहीं हैं, एक ना कस्टम शुदा माल है या कस्टम शुदा है, उस गाड़ी को छोड़ दिया जाए मालदार के, जिसका माल है, जिसका गोदाम है, उन दोनों बंदों FIR दी जाए ताकि ये सनद हो जाए कि ये ऐसा माल हमने। आपका कहने का मतलब है जिस तरह कोई यहाँ से आप जाएं इस्लामाबाद, आप किसी बस में बैठ जाते हैं, किसी ट्रेन में बैठ जाते हैं, अगर वो कोई बंदा गलत है, उसके पास सामान गलत है, वो उसकी जिम्मेदारी है, ना कि आप पूरी बस को ही बंद कर दें। यानी कि जो आप बिल्कुल जी बिल्कुल, इनका ये जो मुतालबात है ये गैर अखलाकी, गैर मुनासिब मुतालबा नहीं है। अगर मैं किसी को कॉल करता हूँ, कोई पर्सन, कोई फैक्ट्री ओनर किसी को कॉल करता है, अपना सामान वहाँ से लोड करता है, तो उसकी ये मजदा के जो ड्राइवर है और जो मालिक है उसकी जिम्मेदारी तो नहीं है। ये या तो जिम्मेदारी है उस मालकान की या आपके इदारे की, कि आपका इदारा इतना स्ट्रॉन्ग हो कि जब वहाँ से कोई माल डिलीवर होना हो जहाँ पे, या कोई एक ऐसा पॉइंट हो जहाँ पे उसका चेक एंड बैलेंस किया जाए, उसके डॉक्यूमेंटेशन चेक की जाए कि ये कस्टम पेड है या नॉन पेड है, इसमें कोई मामलात, कोई गैर इखलाकी चीज़ तो नहीं, कोई मंशियात तो नहीं है। इसमें ड्राइवर का अगर देखा जाए तो इसमें ड्राइवर का, मालकान का कोई इशू नहीं निकलता। अगर फिर भी एज पर लॉ सामान के साथ गाड़ी को बंद भी किया जाता है तो उसकी स्पुर्दारी हंगामी बुनियादों पर होनी चाहिए। वहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन चेक करवाने के बाद गाड़ी को रिलीज़ किया जाना चाहिए, ना कि उसको 6-6 महीने बंद किया जाए, अदालत से स्पुर्दारियाँ आएँ और आप उसके जवाब नेगेटिव बना के दें। तो ये सरासर इनके साथ ज्यादती है, क्योंकि ये 2-4 महीने गाड़ी बंद करवाना अफोर्ड नहीं करते। अगर 2-4 दिन भी बंद की जाए तो इनके घरों के चूल्हे ठंडे पड़ जाते हैं। लिहाजा आला हुकाम से हमारी गुजारिश है कि जितने भी इनके जायज़ मुतालबात हैं उनको फिलफौर पूरा किया जाए, इनकी दादरसी की जाए। देखा जाए अगर ट्रांसपोर्ट जो है वो रीढ़ की हड्डी भी उसे कहा जाता है कि एक शहर से दूसरी जगह जाने के लिए माल हो या आपका अफराद हो, अगर ट्रांसपोर्ट बंद हो जाए तो बिल्कुल सारा जो कहते हैं मुल्क का भट्टा ही बैठ जाएगा। सर मैं बताऊँ ट्रांसपोर्ट कितना टैक्स दे रहा है आपको? टोकन टैक्स, इनकम टैक्स, FBR का टैक्स, रूट टैक्स, रोड टैक्स। हम गाड़ी भेजते हैं पेशावर से लाहौर आती है तो उसका 8,000 हम रोड टैक्स देते हैं, 8,000 रुपया। गाड़ी को बचता के 4,000 रुपया पेशावर से आकर। तो रोड तो फिर भी आपको टूटे हुए मिलते हैं? मिलते नहीं है, 6-6 घंटे लाइन में लगना पड़ता है, इसलिए फिर हमें आना पड़ता है। वो हमारा डीजल में पूरा हो जाता है। जब 6 घंटे गाड़ी ज़्यादा स्टार्ट रहेगी तो उसका डीजल का खर्चा कितना होगा? डीजल, फिर मेंटेनेंस चार्जेस, हर चीज़, ड्राइवर की ट्रिप डबल हो जाता है। और अगर आप किराया ज़्यादा मांगे तो जो आपके कस्टमर है बिजनेस नहीं मिलता, मजबूरी है। बहुत बड़े दुख हैं ट्रांसपोर्टर को। दूसरा, जब ये जो कस्टम इश्यूज़ हैं, इसके अलावा जो ट्रैफिक पुलिस है, इसके साथ आपके मामला तो चोली दामन का साथ है ट्रैफिक पुलिस के साथ आपका, इसको कैसे आप हैंडल करते हैं? सर सर्टिफिकेट हो, टोकन टैक्स ना पूछें, सामने अड्डा है हमारा, ड्राइवर रो रहे हैं, जोड़ियाँ उठाकर बदवा दे रहे हैं लोगों को कि 2,000 का चलान,
चलान होता है, ड्राइवर को सजा देती है 500, 300, 400, 600, ये होता है। 2000 का चलान भी होता है। एक गाड़ी 5000 का चक्कर ट्रिप लगाती है लाहौर शहर में, उसमें 2000 गाड़ी दे 1000 रुपया ड्राइवर का खर्चा है, 2000 गाड़ी को बच जाता है, वो 2000 चलान कर देते हैं। कोई गाड़ी ऐसी जो बच के जाती है। जो चलान है वो ड्राइवर के जिम्मे होता है कि मालकान के जिम्मे होता है? देखें, मालिक नहीं देना होता है, ड्राइवर ने कहाँ देना होता है? ड्राइवर तो पहले ही अपने बच्चे को पा रहा है, उसका घर भी किराए का है, बिजली का बिल भी है, दूध है, गोश्त खा नहीं सकता वो, क्या नहीं तो हमारे सीटीओ होते हैं चीफ ट्रैफिक वार्डन्स के, उनके पास आप जाएं, ये दुख भरी दास्तां अगर आप उन्हें सुनाएं तो मेरा ख्याल अगर कोई किसी में इंसानियत हो, अखलाकियात हो, तो इस चीज़ को फॉलो करना चाहिए उन्हें। एक दिन सीटीओ साहब आपके टीवी पे आके कह रहे थे कि इस तरह मैंने रिकॉर्ड रेवेन्यू इकट्ठा किया है, रिकॉर्ड मैंने चलान किए हैं, 57 करोड़ के चलान किए हैं, कि 57 लाख कह रहे थे, बड़ा फख्र से कह रहे थे। ये फख्र बनता है? ये उन लोगों की बददुआएं हैं, ड्राइवरों की, ट्रांसपोर्टर की, जिनके घर खाना नहीं है। ये गवर्नमेंट को खुश ना करें, ये अपने इदारे को खुश ना करें, ये उनकी बददुआ से डरें। अच्छा, बिल्कुल सीटीओ डॉक्टर साहब, हमारी आपसे इल्तिजा है, इन सब की आपसे इल्तिजा है कि मेरिट पर चलान ज़रूर किए जाएं और सज़ा मिलनी चाहिए। जो गैर कानूनी, गैर अखलाकी और रूल्स की खिलाफ वर्जी करे उनको बिल्कुल सज़ा मिलनी चाहिए, चलान्स भी होने चाहिए। लेकिन अगर आप कहें टारगेट्स, वार्डन्स को टारगेट्स दिए जाएं, जब आपकी तरफ से आपके मुतहद को टारगेट्स दिए जाएंगे तो वो किसी को भी स्पेयर नहीं करेगा। तो इसमें अगर वो कोई जायज़ नाजायज़ करेगा तो इसके जो अमाल हैं, जो इसका, वो आप तक भी जाएंगे, इसके ज़िम्मेदार आप भी हैं। तो जिस तरह आप अभी सदर साहब बता रहे थे कि बगैर किसी वजह के 2000 रुपये का चलान किया जाता है, और फिर अगर आप मीडिया पर आकर इस तरह उसकी तशहीर करेंगे तो वो इनके ज़ख्मों पर नमक छिड़ने के बराबर है। ना कि आप अपने आला ऑफिसर्स को, अपने हुकूमत वक़्त को फंड जनरेट करने का काम आपका नहीं है। आपका काम सिर्फ ट्रैफिक को चलाना है। फंड जनरेट करने के लिए, फंड खाने के लिए, करप्शन करने के लिए बहुत से इदारे बाकी हैं। लिहाजा आप जो ट्रैफिक वार्डन, जो पढ़े लिखे आए थे वार्डन, जो चौधरी परवेज इलाही साहब, ये वार्डन आपकी तहलीक करदा है, आपने इनको प्रमोट किया, आपने ये वार्डन्स को तैनात किया, आपने इनको बनाया, आपने ये महकमा जनरेट किया। और अगर आपकी हुकूमत में लोगों के साथ नाइंसाफ़ी की जाए, लोगों को कहा जाए कि 2000 का चलान है, इसको FIR कर दी जाए, इसको अंदर कर दिया जाए, तो ये सिर्फ आपको खुश करने के लिए, अवाम को खुश करने के लिए नहीं है। और आपका काम यह बनता है, जिन लोगों ने आपको वोट किया, आपको सपोर्ट किया, अपने दोस्तों से, अपने भाइयों से, अपने रिश्तेदारों से लड़ झगड़ कर आपको सपोर्ट किया, तो उनकी दादरसी करना आपकी प्योरिटी होना चाहिए। ना कि आपके जो आला ऑफिसर हैं वो इनके साथ बदअखलाकी करें, इनको चलान करें, इनके जुर्माने करें। और बिल्कुल आपको CM साहब और IG पंजाब साहब, आपको इस चीज़ का नोटिस लेना चाहिए। CCPO गुलाम महमूद डोगर साहब, आपके साथ लोगों को बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता हैं। आप इस चीज़ का नोटिस लें कि जो वार्डन्स को कहा जाता है, जो टारगेट दिए जाते हैं कि रोज़ के इतने चलान, इतनी FIRs, अगर कोई वायलेशन नहीं करता, आप किसी का ज़बरदस्ती बगैर किसी वायलेशन के अगर चलान करते हैं तो फिर वो वायलेशन ही कर ले तो बेहतर है। तो खुदारा CTO साहब, गुलाम महमूद डोगर साहब, इनके साथ इंसाफ करें, इनकी दादरसी करें। ये आप जिस तरह परवेज इलाही साहब आपको और जो CTO साहब हैं, जो आए दिन मीडिया पर आकर जिस तरह कहते हैं वो करते नहीं हैं। और बैकडोर जब आप जाएं तो बिल्कुल उसके अगेंस्ट नजर आता है। जो आप मीडिया पर लोगों की दादरसी का वादा करते हैं, खुदारा बैकडोर भी उसको आप ऑन करें। ये जो ट्रक ड्राइवर्स हैं, ये ड्राइवर्स के पीछे 8-8, 10-10 लोगों की फैमिलियां हैं। अगर आप एक ड्राइवर का चलान करते हैं या उसकी गाड़ी को बंद करते हैं तो खुदारा किसी के रोजगार को आप बंद मत कीजिए, बल्कि रोजगार के लिए आसानियां पैदा करें। जो आपका विजन है, जो आपका मंशूर है कि लोगों के लिए आसानियां पैदा करेंगे, लोगों के लिए रोजगार के मौके मुहैया करेंगे, तो आप उसके अगेंस्ट ना करें। और CTO साहब, आपसे गुजारिश
गुजारिश है डॉक्टर साहब, सीटीओ साहब, सीटीओ लाहौर साहब, आपसे गुजारिश है कि जो आपने टारगेट्स दिए हुए हैं वार्डन्स को चलान करने के लिए, खुदारा इन टारगेट्स को बंद किया जाए। जो वायलेशन करे उसको जरूर फाइन होना चाहिए ताकि दोबारा से वो वायलेशन ना करे, लेकिन खुदारा इस तरह नहीं होना चाहिए। हमने वार्डन्स को ये भी कहते सुना है कि यार मैं मजबूर हाँ भाई, मैनू शोकास मिल जाएगा, मेरी नौकरी का सवाल है। अगर वो अपनी नौकरी बचाने के लिए किसी दूसरे का गला दबाएगा तो इसके जिम्मेदार सीटीओ साहब आप हैं। तो आप भी सीटीओ साहब से कोई अगर रिक्वेस्ट करना चाहे, अगर वो सुन लें आपकी बात तो। जी, मुझे तो अफसोस ये है कि कल हम ज़मान पार्क जा रहे थे, ऐलान कर दिया, सीटीओ साहब के कॉल आ गई कि आप मेरे पास आएँ, हम आपको सुनते हैं। उन्होंने हमें बुला के चाय पिलाई, उन्होंने हमें यकीन दिलाया कि आपके काम बिल्कुल होने वाले हैं, हम आपका काम करते भी हैं, कल आप फाइल लेके आ जाएं। उन्होंने मलिक इकराम साहब को साथ भेजा धरने में। उन्होंने जो ऐलान किया कि जब तक ये हमारे स्टैंडों के मामला हल नहीं होते, जहाँ जहाँ मदे ट्रक खड़े होते हैं वहाँ वहाँ खड़े होंगे। उसके बाद FIR करवाना, इससे बड़ी ज्यादती हमारे से क्या हो सकती है? इससे बड़ा ड्रामा आप ये देखें, एक मजदा है 16 फुट होता है, 16 फुट 18 फुट 20 फुट ऐसे कुछ साइज है। 16 फुट हो गया। ये 16 फुट की गाड़ी को आप अपने गैराज में तो नहीं खड़ा कर सकते, जरूरी है उसको आप रोड पे खड़ा करेंगे, या फिर गवर्नमेंट आपको उसका कोई अल्टरनेट कोई जगह दे जहां पे आप उसको खड़ा करें। जनाब आला, अगर आप इनको जगह देते हैं, फिर ये अगर वायलेशन करें, ये उस जगह के अलावा कहीं पे स्टैंड बनाएं, अपनी गाड़ी खड़ी करें, तो इनको 2 की जगह 4000 का फाइन होना चाहिए। अगर आप इनको जगह ही मुहैया नहीं करते तो गिराज तो 8 फुट का होता है, और एक बंदा अपने गिराज में फिर अपने घर इनके लिए भी जगह ले, और आपको पता है लाहौर के सराउंडिंग में जगह खरीदना हर बंदे के बस की बात नहीं है। और या तो फिर इनको आप एक हुक्मनामा जारी करें कि ये जो गाड़ियां हैं 18 फुटी 20 फुटी इसको अपने गिराज में रखें, फिर आपका चलान नहीं होगा, आप पे FIR नहीं होगी। तो खुदारा इस तरह के जो उल्ट पटांग जो कानून है, जो गैर मुनासिब गैर अखलाकी कानून है, जो लोगों के रोजगार पर शबे खून मारने वाले कानून है, इसको खुदारा खत्म किया जाए। इनकी ड्राइवर्स की, मजदूरों की, इनकी दादरसी की जाए। इनके बच्चे आपको दुआएं देंगे, ना कि ये हुकूमत जो आज बनती है कल टूटती है। किसी को अभी तक यही नहीं पता हुकूमत PMLN है, PTI है, काफ लीग है, PP है, हुकूमत आज है और कल नहीं है। ये आवाम की बदुआएं जो जमीन से आसमान तक जाती हैं, इनसे बचना आपकी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है। खुदारा जो इनके मेरिट के काम है उनको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रख कर किया जाए। तो साहब ये बताइएगा कि इसके ट्रैफिक वार्डन्स के जो इसके अलावा जो आपको इश्यूज हैं, फिटनेस वाले भी आपको तंग करते हैं? फिटनेस वाले भी तंग करते हैं। साफ ज़ाहिर है कि एक हमारी गाड़ी कराची की है, उन्हें कराची से फिटनेस करवाई है। जब लाहौर आती है तो एक नया सिस्टम आ गया है कंप्यूटराइज करवाना कॉलेज काकू से। वो कहते हैं हमसे करवाएं, वो कहता है मेरे पास कराची की है, मेरा नंबर गाड़ी का सिंध का है, मैं सिंध से आया हूँ, उसको बंद कर दिया जाता है। यानी कि इदारे एक दूसरे को मानने को तैयार नहीं है। वो सिंध का नंबर गाड़ी का, सिंध का रूट है, सिंध की पासिंग है, फिटनेस है, उसको ये मानते नहीं। जब ये कहते हैं कि जो सिंध के टोकन है वो पंजाब से वेरीफाई नहीं होंगे, वो सिंध से लगवा के आए, तो रूट परमिट जो है सिर्फ वो तंग इसलिए करते हैं कि उनको कुछ ले दो, चाय पानी सिस्टम किया जाए। इससे ऐसी शिकायत तो नहीं आई, लेकिन हमारा मकसद ये है कि गाड़ी का सिंध का नंबर है, सिंध का रूट है, सिंध की पासिंग है, उसको पंजाब को मानना चाहिए। पंजाब नहीं मानते, रूट परमिट तो है उनका, पंजाब का लादा है, उसका लादा है, जो पासिंग है फिटनेस है वो देखते होनी है, गाड़ी का टायर माड़ा है, टायर का कोई इंजन माड़ा है, क्या है, रोज तो नहीं करवाते। रूट तो ये है कि हमने वो सुबह यूज करना है, हमने ये सुबह यूज करना है, हमने अलग अलग रूट बनवा लिए। जो फिटनेस है वो तो गाड़ी की फिट है या नहीं फिट वो भी बताते हैं, यही बताते हैं, ये माननी चाहिए इनको। अच्छा, टूल प्लाजे जो हैं, टूल प्लाजे भी आप लोगों से ज़्यादा कमर्शियल के हिसाब से लिए जाते हैं, और कई जगह में ऐसा भी सुनने में आया, आपके ओहदे दौरान से हमारी जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि कई टूल प्लाजे ऐसे हैं कि जो कि ऑन नहीं करते, ये ज़बरदस्ती हमसे ऑन करवाते हैं उसको। जी, आपके सामने जिंदा मिसाल है। ये चौक से चंद कदम आगे जाए तो एक गुलशन अभी मकाम पे टोल प्लाजा लगा है। यहाँ में खोता रेडी, गदा रेडी, साइकिल, मोटरसाइकिल, ट्राली, ट्रैक्टर, पैदल लोग, हर चीज़ जा रही है। अभी बंद रोड है, रिंग रोड तो है ही नहीं।
उसका हमारे से ज़बरदस्ती रिंग रोड की मद में टूल प्लाजा लिया जा रहा है। हज़ारों बार एहतजाज किए हैं, वक्ती तो उठा लेते हैं फिर लगा लेते हैं। ज़्यादा लेना या ना लेना वो तो अलग बात है ना, एक टूल प्लाजा बनता ही नहीं है। हमारा वादा किया गया कि जब जो वो सियालकोट वाला मोटरवे चलेगा हम इसे उठा के उधर ले जाएंगे, इसको फ्री कर देंगे। यानी कि आपको वायलेशन की इजाज़त नहीं है, वायलेशन की हुकूमत वक्त और इंतज़ामिया को इजाज़त है वायलेशन करने की। ये टूल प्लाजा नहीं लिया जा रहा, ये भत्ता लिया जा रहा है हमारे से। इसके पीछे भी तो कोई माफिया होगा ना? नहीं खबर क्या है, लेकिन हम तो देते हैं हर रोज 100 200 300 हर रोज देते हैं। गाड़ी का फिरा जब जाएंगे आप खाली जाएं या लोड आए, आपने जहाँ मर्जी घर जाएं, ये उस साइड हमारा घर है, जाना है तो हमने इसको 250 रुपये दे के जाना है, आना तो फिर 250 देना है। 250 रुपया टूल प्लाजा, और अगर आप एक दफा जाएं और आए तो 500 रुपया आपका टूल प्लाजा दे। हमारे जो बेडफोर्ड गाड़ी उसका 500 आने जाने का टोल प्लाजा बनता है। ये टूल प्लाजा किस चीज़ का लेते हैं? ये रिंग रोड है, ये रिंग रोड है। आप गुजरते हैं हर रोज, लाइनें लगी होती हैं ट्रैफिक की, 3-3 घंटे ट्रैफिक नहीं जान छोड़ती हमारी, 3-3 घंटे। रिंग रोड पर साइकिल खोता रेडी को तो इजाज़त नहीं होती। बदमाशी है ना, ये तो हम ये रो रहे हैं, हम क्या करें? ज्यादा बोले तो FIR करवा लेंगे। यानी कि जो कोशिश किया करेगा तो उसको FIRs करके जेल में डाल के उसका दबाया जाएगा, थ्रेट किया जाएगा। कहाँ वाद ना मुंह ना खोलें, वाद के बाहर ना निकले, वाद को दबाया जाता है। इसमें कुछ सियासी असर और सूख भी पाया जाता है। साफदार है हमारा उधर जहाँ पे का धरना जाएगा फार चौक में, वो लोग भत्ता मांगते हैं। हमारी 50 गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, नहर की जगह साइड पे है, वो सियासी लोग आते हैं भत्ता दें, 2 लाख दे तो गाड़ी खड़ी होती है, 2 लाख ना दे गाड़ी खड़ी नहीं होती। गैर सरकारी सियासी तौर पे हमें टारगेट किया जा रहा है। यानी कि सियासतदानों ने एक मजदूर को जिसकी 2000 दिहाड़ी है उसको भी ना बख्शने का तहैया कर लिया हुआ है। ये जो पर्चों में सियासी बेस पे हमारे हुए हैं, जब हम मुज़ाकरात हो गए FIR क्या तक बनता है। इसका मतलब है आप उनको वहाँ पे भत्ता देना शुरू कर दें और मामलात आपके ठीक हो जाएंगे, FIR भी आपकी वापस हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन यानी कि एक भत्ताखोर से लेके आला अफसर तक सबका कट जोड़ एक जैसे ही है। हमें नहीं समझ आई। नहीं समझना चाहिए ना कि जब आप उधर भत्ता दे दें तो आपको ना एहतजाज करने की ज़रूरत है, ना आपकी वहाँ से कोई गाड़ियाँ हटाएगा, ना आपको कोई कंप्लेन करेगा। अगर आप पैसे नहीं देते तो इस तरह का मामला था ना। तो IG पंजाब साहब, CCPO गुलाम महमूद डोगर साहब, आपका दावा है कि आपने बदमाश कल्चर लाहौर में ख़त्म करना है, आपने इस तरह का कोई भी एक्टिविटी नहीं होने देनी। अगर कोई किसी से भी गैर मुनासिब अगर इस तरह की डिमांड्स करता है तो वो भत्ते में ही आ जाती हैं। अगर कोई आपकी गाड़ी खड़ी करने को, मुझे गाड़ी खड़ी करने से, इनके मजदूरों को, ड्राइवरों को गाड़ी खड़ी करने से रोकेगा, अगर उसकी डिमांड्स पूरी कर दी जाएं तो आप गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। अगर तो वो उसकी मलकियत जगह है फिर तो उसका राइट बनता है। अगर वो सरकार की जगह है तो इसमें उन लोगों के साथ साथ आपकी इंतज़ामिया, आपकी सरकार, DC साहब, आपने भी इस तरह के वादे करते नज़र आते हैं कि इस तरह की कोई वायलेशन नहीं होगी, कहीं पे कोई गैर पार्किंग जो है, लाहौर पार्किंग है वो नहीं होगी, किसी से ओवर चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। तो हर जगह पे वही कुछ होता है कि जो आप कहते हैं ये नहीं होगा। क्या हम ये समझें कि जो आप कहते हैं कि ये नहीं होगा और एंड ऑफ द डे वही होगा? ये कब मामला ठीक होंगे आपके, कब इनको इंसाफ मिलेगा, कब इनको जो मेरिट के जो हक सच के फैसले हैं, जो इनके काम है मेरिट पे, जो इनको कैसे कौन करेगा? अगर इनको मुतलका CTO से इंसाफ नहीं मिलता, DC से इंसाफ नहीं मिलता, कमिश्नर से इंसाफ नहीं मिलता, ये CM हाउस के बाद धरना नहीं दे सकते, तो ये क्या करें? लोग फिर खुदकुशियों की तरफ जाएंगे और उन खुदकुशियों का जिम्मेदार कौन होगा? आप इंतजामिया होंगे। तो चौधरी साहब, आप वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही जो कि आजकल बड़े मेहरबान हैं, अगर आप उन तक पहुंच जाए ना तो क्योंकि वो गुजरात को 35 अरब रुपए का डोनेट कर सकते हैं, वहाँ के फंड दे सकते हैं, हाफसाबाद को जो उनके पर्सनल सेक्रेटरी हैं उनको 10 अरब का फंड दे सकते हैं। तो मेरे ख्याल अगर आप पहुंच जाए ना किसी तरह तो आपके भी बड़े सारे मामला हल हो सकते हैं। जी हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने ID कार्ड के ऊपर गुजरात का एड्रेस लिखवा लें, फिर आपके मसले शायद हमें वो सुन लें।
ये हमें कोशिश करें कि 100-200 बंदा गुजरात का अपने ID कार्ड पर एड्रेस रखवाएं और रिक्वेस्ट करें तो शायद वो हमें सुन लें। क्योंकि बिजनेसमैन का ट्रांसपोर्टर की ना कोई गवर्नमेंट होती है, उनके लिए वो गवर्नमेंट वो इंतज़ामिया अच्छी है जो उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ दे, जो उनको तहफ़्फ़ुज़ दे, जो उनके ड्राइवर्स को उनकी व्हीकल्स को तहफ़्फ़ुज़ दे। कि आपको तो किसी पार्टी से PMLN हो, PP हो, PMLQ हो, किसी से कोई गर्ज नहीं है। आपको तो जो आप लोगों के मेरिट पे काम करे, आपकी हक सच की आवाज़ को सुने। पाकिस्तान मजदा एसोसिएशन के इस वक्त कुछ 600 अहदेदारान हैं। 600 में से कुछ पीपल पार्टी के हैं, कोई नून लीग के हैं, कोई PTI के हैं, कोई जमात इस्लामी के हैं, कोई TPL के हैं, मुख्तलिफ लोग हैं। ये जमात का अपना एक सिस्टम है कि ये ट्रांसपोर्टर की जमात है, ये ट्रांसपोर्ट तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए जमात बनी है, इसको तोड़ा जा रहा है, इसको टारगेट किया जा रहा है, हम इसके पीछे खड़े हैं। ये आपकी एसोसिएशन को ख़त्म, आपकी एक ही एसोसिएशन है या और भी मजदा एसोसिएशन है? पाकिस्तान में एक ही एसोसिएशन, पाकिस्तान मजदा एसोसिएशन। तो फिर भी आप इंसाफ से महरूम हैं। आपने देख लिया कल हमारे साथ क्या हुआ है। हमें चाय भी पिलाई गई है, हमें अच्छे से बिठाया भी गया है, बुलाया भी गया है, FA भी दी गई है। इसको आप मुनाफिकाना सिस्टम नहीं कहेंगे? आप कह रहे हैं तो मैं कह रहा हूं, एक ही बात है ना, आपके सामने सब ऐसा ही है ना। अगर मैं आपसे कोई कमिटमेंट करता हूं और मैं सीढ़ियों से नीचे उतरता हूं और कमिटमेंट ऑन नहीं करता मैं। हमने ये कहा कि अगर आपने हमें बिठाना है तो सिटी जो SP साहब हैं, जो होंगे सदर, उनको साथ बिठा लें, आप साथ बैठ जाएं, हमारे से बैठ के मामला तय कर लें। उन्होंने बोला ठीक है आप आ जाएं, वो उधर मौजूद होंगे। जब गए तो वो नहीं थे। हमने सवाल किया, आपने डिमांड की थी कि उनको साथ बिठा लें कि उनको मामले का पता हो। उन्होंने कॉल की, उन्होंने बोला हमजा भाई वो आपके वो मिलना चाह रहे हैं, सुशी वहाँ भी आ जाएं। मैं अभी तो साफ है कि 5-6 का टाइम है, हमने जाना है, शुल्का को वापस भेजना है, टाइम लगे, कल का हम टाइम कर दें। उनसे बात हो रही है, बात होने के बजाय बात FIR होनी, ये FIR भी तो आपको सदर डिवीजन में, उसी डिवीजन में ही आप उसी थाने में, उसी डिवीजन में हुई। अगर इन्हें FIR देनी दें और दें, FIR जितनी मर्जी दें, हजारों FIR। आप लोग गिरफ्तारियों के लिए तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हैं। जितने लोग ये कहेंगे जेलें भर जाएंगी, ट्रांसपोर्टर नहीं खत्म होंगे। तो आप समझते हैं कि इसका जो आपको इंसाफ मिलने का सिर्फ एक यही तरीका रह गया, जो मीटिंग्स आपने की हैं वो बेमायना हो गई हैं? हम इंशाल्लाह पीर बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उसमें लाहे अमल ऐसा देंगे कि ये देखेंगे बना क्या हमारे साथ। इतने लोग निकलेंगे, इतनी गाड़ियाँ निकलेंगी। नहीं, गाड़ी रोड ब्लॉक करने के लिए तो एक ही मसला बड़ा है 18 फुट का, यहाँ तो 10-10, 15-15 फुट की सड़कें हैं। पूरे पंजाब में लोग निकलेंगे। पूरी पाकिस्तान में आपकी एसोसिएशन है? पूरे पाकिस्तान में है, 4 सूबों में है। और ये कितने लोग हैं आपकी एसोसिएशन के जो ओहदेदार? ये ओहदेदारान है, ये 600 भी है जी। बाकी हम आगे 600 ओहदेदारान है। और जितने जो आपके मेंबरान हैं, टोटल इनकी कितनी? मेंबर तो जो हमारा मजदा चलाता है वो भी हमारा मेंबर है, जो उसका मालिक वो भी हमारा मेंबर है, जो उसका बेटा है वो भी हमारा मेंबर है, वो तो मेंबर। ये जो अभी एक्साइज से 7 से 8 हज़ार मजदों का इशू है, इसके अलावा भी मजदे 50,000 मजदा है पूरे पाकिस्तान में। ठीक, यानी कि लिटिगेशन जो है वो 7 से 8 हज़ार का, टोटल जो है वो 50,000 प्लस। 50 ऊपर है, कम नहीं है। मैं ये पंजाब के इतने 50,000 जो फिक्र आई है, पूरे पाकिस्तान बहुत ज्यादा है। तो इससे तो लाखों अफराद का रोजगार जुड़ा है, घरों के चूल्हे जुड़े हैं, तो इनको इस पे तो खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। देखेंगे जो इनके प्रोटोकॉल हैं, जो इनके बच्चों की फीसें देते हैं, जो इनका घरों के बिल देते हैं, वो हम लोग ट्रांसपोर्टर हैं, टैक्स के जरिए इतना टैक्स देते हैं। टैक्स के और जो दूसरे अंडर टेबल भी सुना मामला काफ़ी करने पड़ते हैं। हम अंडर टेबल नहीं करते, गाड़ी बंद करवा लेते हैं। गाड़ी बंद करवा लेते हैं, पैसे नहीं देते। ये हमारा मिशन है कि इनको पैसे दें। इसी वजह से तो आप देखें ये FIR क्यों ही है, हम फिर भी नहीं देंगे और FIR हमारे ऊपर दे, नहीं बता देंगे, नहीं किसी को पैसा देंगे, हम खुद मजदूर हैं। आप समझते हैं ये जो इश्यूज बने हैं ये साबका ATO के CTO के भी ऐसे थे या अब CTO के हालात कशीदा हो गए? साबका CTO तो हमें अच्छे तरीके ट्रस्ट करते थे। वो ये समझते कि इनके मामला जायज़ हैं और हल करने चाहिए, तो समझते ये भी हैं, लेकिन रात को कहते हैं हमके मामले हल होने वाले हम करते हैं। ये बालातर बात है कि उन्होंने FIR क्यों दी,
और दें, सामने बिठा के देते, उधर गिरफ्तार करते, हमें पंडाल में गिरफ्तार करते, हमारे और लोगों को गिरफ्तार करते, पीछे से FIR करना। इस बात की समझ नहीं आई, 29 लोगों पे तकरीबन FIR आपकी दर्ज हुई है, उसमें से 4 जो हैं वो नामजद हैं, तो 25 लोग जो हैं वो नामालूम। इसका मतलब जो जरा सा स्टैंड करेगा वो वही होगा। वो ऐसा होगा ना, एक को पकड़ा, आप भी धर्म में थे, या स्टैंड करेगा, लाख 50,000 देगा, उसको फर्क कर दिया जाएगा, वो या फिर और जो पैसे नहीं देगा वो जेल की हवा खाएगा। जो उनके बात मानेगा वो बरदुम हो जाएगा, जो नहीं मानेगा उसको बंद कर दिया जाएगा। आपको उससे FIR में थे। अच्छा, सुनने में ऐसा भी आया है कि ये जो इंतजामिया है ये आपके अगेंस्ट, आपके मद्दे मुकाबिल एक और एसोसिएशन बनाना चाहते हैं, लोग बना लें। करते हैं। जो मजदा वाले हैं वो एक ही हैं, एक रहेंगे, जितनी मर्जी उसे बना लें, बनेगी नहीं। इनके ये गरीब लोग हैं, ये मर जाने वाले लोग हैं, ये बत्ता देने वाले लोग नहीं हैं। जी चौधरी साहब, आपका शुक्रिया। और हम जो इनके एक और सीनियर मेंबर हैं, ओहदेदारान हैं, हाजी लियाकत साहब, उनसे पूछेंगे कि वो इस मामले को कैसे देखते हैं और इसका उनके मुताबिक या उनके नज़रिए के मुताबिक इसका क्या हल होना चाहिए। वेलकम बैक नाजरीन। हाजी लियाकत साहब जो मजदा एसोसिएशन के सीनियर मेंबर हैं, सीनियर ओहदेदार हैं, इनसे पूछेंगे जो ये मामलात इनके चल रहे हैं रजिस्ट्रेशन के और जो ये एहतजाज के, उसके बाद FIR पकड़ो वाली से जो सिस्टम हुकूमत वक़्त ने चलाया है, इसके लिए इनकी क्या सजेशन है, हुकूमत वक़्त से इनकी क्या डिमांड है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी हाजी साहब, ये बताइएगा जो आप अपने हक़ के लिए एहतजाज किया, आपने अपने बच्चों के रोज़गार के लिए एहतजाज किया आपने, उसके जो आपकी दादरसी हुकूमत वक़्त को करनी चाहिए थी, उसके बदले में हुकूमत ने आपके झोली में एक FIR डाल दी, आपको जुराइम पेशा अफराद की लिस्ट में शामिल कर दिया। आप क्या इसके बारे में कहेंगे? ये देखें, ये सारी दुनिया ने देख लिया है, जो उधर लोग थे वो भी देख रहे थे। हमने इख्तिजाज किया, पुरअमन किया है, किसी जगह पे किसी को तंग नहीं किया, राही को तंग नहीं किया, एम्बुलेंस भी बिल्कुल गुजरती रही हैं, कोई ऐसा मसला नहीं। लेकिन मैंने तो ये रिजल्ट निकाला है कि ये हम तो सुलझाने वाली बात कर रहे हैं इस मामले को, लेकिन ये जो माफिया पीछे बैठा है ना, माफिया असल में जिन्होंने ये काम मेन किया है वो उलझाने में इनको उलझा देता है। वो अगर आते भी हैं कहीं कंप्रोमाइज़ करने के, लेकिन ये पीछे से डोर खींच लेते हैं ताकि ये कहीं ये मसला हल ना हो जाए, ये ऐसे ना खजल खराबी होती रहे, ये लोगों के चूल्हे बंद ही रहें तो ठीक है। मैंने तो यही रिजल्ट निकाला है और इससे आगे तो ज़ाहिर है कि वो बेहतर हमारे अवाने बाला जो ना वो समझते हैं। या CTO साहब ने भी कल हमारे सदर साहब से जो मीटिंग की थी उस पर भी पूरा नहीं उतरे। जब रात गए पता चला कि इन्होंने तो FIR भी दे दी है, FIR कटा दी है इन लोगों के पुरअमन। नहीं हाजी साहब, आप लोग तो अपना एक जायज़ मुतालबात आपने पेश किया, अगर कोई आपकी बात आला ऑफिसर आला हुकाम नहीं सुनेगा तो एंड ऑफ द डे तो ये एहतजाज धरना तो इसी गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि आपको अपना हक नहीं मिलता तो आप एहतजाज करें। देखें जी, ये हमारा हक है, हक हमारा कोई छीन नहीं सकता, ना हमारे हक पे कोई डाका डाल सकता है। ये हमारा तो हक है क्योंकि हमने इन अपने बच्चों के लिए, इन ड्राइवरों के लिए जो है हमने निकलना है, क्योंकि ज़ाहिर है जो ड्राइवर हमने रखे हुए हैं, हम तो चलो फिर भी घर में रात को सो जाते हैं आराम से, वो सारी रात जाग के निकालते हैं, पता नहीं मौत के मुंह से निकाल के लोगों का जो माल मंजिल मकसूदा पहुँचाते हैं, दवाइयाँ, उसमें फल, हर तरह की, यानी कि जो भी मसनूआ आता ना उन्होंने पहुँचानी है, टाइम से पहुँचानी है। लेकिन उसका रिज़ल्ट यही है, आपके सामने है, सारी आवाम के सामने है। पाकिस्तान की आवाम में सबसे ज़्यादा मजलूम तबका जो है ना वो ट्रांसपोर्ट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा रेवेन्यू भी यही देता है और सबसे ज़्यादा जो है ना जलालत भी इसके ज़िम्मे में है। आपका जो मईशत का पहिया जिसको समझा जाना चाहिए, ये उसी को बंद करने की कोशिश, मेरे ख्याल में तो यही है। कहते हैं कि ये बंद हो जाए, ये बंद करने की कोशिश ही है ना। हम तो चाहते हैं कि ये पहिया चलता रहे, ये चलेगा तो ज़्यादा अफरा तफरी नहीं। देखें, हम तो ये महब वतन शहरी हैं, हम तो नहीं ये चाहते कि अफरा तफरी हो, लेकिन जो हालात पैदा कर रहे हैं ना, ये हालात के मुताबिक तो यही है कि ये चाहते यही हैं
कि ये निज़ाम जो है ना चले नहीं, इस निज़ाम को मेरे ख्याल में ये सारा ना वो ठप करना चाहते हैं। आप वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही से क्या कोई अपना जायज़ मुतालबा, क्या रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हमारी दादरसी? देखें जी, हम तो यही कहेंगे कि हम मुतालबे तो सारे जो है ना उन तक जा चुके हैं, लेकिन कोई भी नजायज़ मुतालबा तो हमारा ना माने। जो जायज़ मुतालबे हमने बताए हैं उनके ऊपर जो है ना हमें रिलीफ मिलना चाहिए। जी बिल्कुल। हाजी साहब, हाजी लियाकत साहब जो सीनियर अहदेदारान हैं, मज़दा एसोसिएशन के मेंबर हैं, उनका एक बड़ी सी आजिज़ाना सी वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब से दरख्वास्त है कि जनाब एक नज़र अपने करम की इधर भी कर दीजिए। जो लोगों के चूल्हे ठंडे होने को हैं, आप उनको बचा सकते हैं। आपका एक ऑर्डर, आपकी एक मीटिंग लाखों अफराद के चूल्हे ठंडे होने से बचा सकती है, लिहाजा इस पर गौर कीजिएगा। अब हमारे साथ हैं आसिम राजा जो बीट रिपोर्टर है ट्रांसपोर्ट के, और इस धरने एहतजाज को भी बड़े क्लोज करीब से देख रहे हैं। उनसे पूछते हैं कि हुकाम तक कोई कानों पे इनके जूं रेंगने का कोई असरात हैं या अभी नहीं। जी बिल्कुल। आसिम राजा साहब बीट रिपोर्टर से हम डिस्कस करते हैं। आसिम राजा साहब, एक तो आपको हम अप्रिशिएट करते हैं कि आप रात भी काफ़ी देर तक 2-3 बजे तक राब्ते में भी रहे, इसको धरने एहतजाज को साथ साथ कवर भी करते रहे। आज सुबह पता लगा, आपने हमें बताया कि जो रात को इनके साथ कमिटमेंट की गई थी उसके बिल्कुल अगेंस्ट इन पे FIR दर्ज कर दी गई है। तो ये क्या इस तरह क्यों किया जाता? पहले कमिटमेंट की जाती है, उसके बाद उसी कमिटमेंट को ऑन नहीं किया जाता। तो इसमें आप वसी तजर्बा रखते हैं ट्रांसपोर्ट में, तो इसमें कौन से अफराद मुलव्वस हैं जो इनको आपस में अटैचमेंट नहीं होने दे रहे, इनके जो मुतालबात हैं, जायज़ मुतालबात हैं, उनको पूरा नहीं होने दिया जा रहा? इसकी क्या वजूहत है? बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। असल मामलात ये है कि ये ट्रांसपोर्टर्स की बात नहीं है, ये लम्हा फिक्रिया है अल्लाह हुकाम के लिए कि हमारे जो लोग हैं जब तक ये धरने नहीं देते इनके कानों पे जूं तक नहीं रेंगती। हमने जब भी देखा, आप जहां भी देखें, डॉक्टर्स देख लें, पैरामेडिक्स देख लें, ये ट्रांसपोर्टर्स देख लें। यानी इसको कानून का हिस्सा ना बना दिया जाए कि जिसको कोई अपना हक चाहिए हो वो पहले धरना दे, उसके बाद कोई मुज़ाकरात होंगे। ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है, ये तो कानून का हिस्सा होना चाहिए। हमारे तो जो अल्लाह हुकाम है वो इस चीज़ के सोचते ही नहीं है कि हमने करना क्या है। हम लोग जब उनके घरों के घेराव करते हैं, जब हम पंजाब असम्बली के सामने जाके ये लोग एहतजाज करते हैं, हमने देखा, हमने कवर भी किया, तो तब जाके ये इनकी बात सुनी जाती है। 5-5 दिन 7-7 दिन सर्दी में ये बैठे हुए भी हमें नजर आते हैं। तो जब तक हम एहतजाज ना करें तब तक हमारी बात नहीं सुनी जाती। ये अभी जो मज़दा एसोसिएशन, पाकिस्तान जो मज़दा एसोसिएशन है, इनके जो सदर से बात हो रही थी आपकी, तो इन्होंने भी यही कहा कि हमने इनको 12 दफ़ा एप्लीकेशंस दी हैं। तो जब ये एप्लीकेशंस दे रहे हैं तो सुने ये कहते क्या हैं। जब ये धरना दिया तभी सुनी, और इनको जब बुला लिया, चीफ ट्रैफिक ऑफिसर असद मली साहब ने रात को इनको बुलाया, बड़े अच्छे तरीके से इनके साथ गुफ्तगू हुई, इनको चाय पिलाई गई, इनको बताया गया कि आपके जो मुतालबात हैं, स्टैंड आप बिल्कुल सच बात कर रहे हैं कि 18 फुट की गाड़ी है वो कहाँ खड़ी करेंगे आपके पास तो स्टैंड। इनका मुतालबा भी जायज़ मुतालबा है कि 4 जगहों पर हमें पूरे लाहौर में सिर्फ 4 जगह मांग रहे हैं और कई ऐसी जगह मौजूद हैं। प्रेसिडेंट शेर अली चौधरी साहब कह रहे थे कि अगर कोई उसका माइनर सा किराया भी हुकूमत वक्त इंतजामिया तय करती तो वो भी देने को तैयार है। सर ये तो अभी भी दे रहे हैं, ये तो चौधरी शेर अली साहब भूल गए हैं ये बताना कि ये तो अभी भी देते हैं। जहां पे ये ट्रक खड़े करते हैं, आप मुल्तान चुंगी स्टैंड पे चले जाएं, ये 200-200 रुपए 300-300 रुपए दे के गाड़ी निकालते हैं। जब इनको एक जो इसको गाड़ी को मिलता है फेरा जिसको हम बोलेंगे, तो ये जब जाते हैं सर जी तो पैसे दे के जाते हैं, हर जगह पे देते हैं। ये बताइएगा जो 200-300 रुपए जो भी चार्जेस स्टैंड के हैं वो सरकारी है गैर सरकारी है, वो भत्ते की मद में लिया जाता है? सर ये सारा कुछ भत्ते की मद में ही जाता है। आप ये छोटी ट्रांसपोर्ट को ले लें जो वैगनें लाहौर शहर में चलती हैं, उनसे भी कई जगहों पे भत्ता लिया जा रहा है, तब तक गाड़ी चलने नहीं देते, गाड़ियों की तोड़फोड़ करते हैं ये लोग। ये ऐसा माफिया है जो हमारे अंदर बस चुका है। काम इस बात पर खामोश है कि उनको पता नहीं है कि ये उसमें उनका प्रॉपर हिस्सा है, इस वजह से खामोश। सर मुझे आप ये बता दें कि कभी भी ऐसा हुआ है कि छोटे लेवल पे काम हो रहा और बड़े लेवल को पता ना हो? ये चीज जो है ना ऊपर तक जाती है, जब नीचे से पैसे इकट्ठे होते हैं तो ये ऊपर तक जाते हैं। तो ये चीज़ें जो है जब तक हल नहीं होंगी, इनके जो जायज़ मुतालबात हैं और बाकी भी जितने लोगों के मुतालबात हैं, अब ये बात कर रहे थे 2000 रुपये चलान की, मैं बड़ा एक अहम पॉइंट इसमें वैलिड है जो इसमें ऐड करना चाहूँगा कि चीफ ट्रैफिक ऑफिसर की तरफ से 2
2000 रुपए के जो चालान है वो 20 चालान एक वार्डन को करने के अहकामात जारी कर दिए गए हैं। वार्डन 20 चालान, यानी कि 40,000 की इनकम चाहिए। जी बिल्कुल, ये रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं सर। 5 FIR जो बंदा नहीं देगा उसको 2 घंटे 3 घंटे एक्स्ट्रा ड्यूटी के लिए बाउंड किया जा रहा है, और जब वो ट्रैफिक वार्डन अपने 20 चालान पूरे नहीं करेगा उसको शोकॉज नोटिस दिए जाएंगे। तो वो क्यों नहीं करेगा? आपने देखा कि 3 जगहों पे अभी तक लड़ाई हो चुकी है, कल भी लड़ाई हुई है, ट्रैफिक वार्डन्स को मार पड़ी है। जब शहरियों के नजायज चालान होंगे सर, वो तो जब उनके पास खाने कोई टारगेट सीटीओ को मिला है कि आपने दूसरी जगह से फंड नहीं हम जनरेट कर पा रहे, FBR से टैक्स कलेक्शन नहीं आ रहा, दूसरी जगहों से फंड नहीं आ रहे, क्योंकि गवर्नमेंट का तो आपको पता है आज PML है, कल PP है, कल PTI है, किसी को पता ही नहीं गवर्नमेंट किसकी है। तो अब इन सीटीओ का काम तो फंड जनरेट करना नहीं है, तो ये सीटीओ को किसी की हदायत पे फंड जनरेट किए जा रहे हैं। सर बिल्कुल आपकी बात ठीक है, ये फंड जनरेट करने की सिचुएशन पैदा की जा रही है। ट्रैफिक जैम के मिसाइल वही हैं। आप आज देख लें कि आप जब गुजरे हैं सड़कों से तो ट्रैफिक वार्डन्स जो हैं वो जत्थों की शक्ल में खड़े होके गाड़ियों के चालान करते हुए नजर आ रहे हैं। कोई एक आपने ट्रैफिक वार्डन्स नहीं देखा होगा कि जो सड़क को क्लियर कराने के चक्कर में मजबूर होंगे फिर। जी बिल्कुल मजबूर हैं। मेरी कई ट्रैफिक वार्डन्स से जब बात हुई तो वो यही कह रहे थे कि हम इन मजदों के, इन गाड़ियों के, इन वैगनों के चालान करने पे मजबूर हैं। एक बड़ी अहम बात कि ये जो लोग हैं ये कभी गाड़ियों के चालान करते हुए आपको नजर नहीं आएंगे, क्योंकि वो आगे से माफिया है, वो आगे से अमीर लोग हैं, वो तो इनकी नौकरियों को खा जाते हैं, वो तो धमकियां देते हैं, मैं फलां किस्म का ऑफिसर हूं, तुमने मेरी गाड़ी को क्यों रोका? हमने देखा भी। ये गरीब लोग बेचारे जो मजदे वाले हैं, जो वैगनों वाले हैं, ये रिक्शों वाले हैं, आप इनकी डिटेल निकाल के देखें। इनके जो चालानों की मद है, ये जो 54 करोड़ या 58 लाख या 58 करोड़ की बात करते हैं कि हमने इतने पैसे इकट्ठे किए हैं, उनमें से सारे के सारे आपको नजर आएंगे कि 90% जो है वो सारे गरीब लोगों के चालान है। इसका मतलब जो सीटीओ साहब के गैर कानूनी गैर इखलाकी अहकामात वार्डन्स के लिए हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए वो अवाम के साथ ज्यादती कर रहे हैं। जी बिल्कुल सर, इस टाइम पे अवाम के साथ बहुत ज्यादती हो रही है, और सारी की सारी ज्यादती भी गरीब लोगों के साथ हो रही है, इन मजदा वालों के साथ, इन रिक्शे वालों के साथ और इनके साथ ही हो रही है। इनके पास रूट परमिट भी हैं, इनके पास फिटनेस सर्टिफिकेट भी हैं, इनके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी हैं, फिर भी इनके चालान क्यों भाई? ये जब जा रहे हैं आप, एक दिन हम इंशाल्लाह ताला प्रोग्राम करेंगे इनके साथ, इनकी गाड़ी में बैठेंगे, हिडन कैमरे लगाएंगे, आपको दिखाएंगे। ये तो हर चीज लेके सीट बेल्ट बांध के जा रहे होंगे, और हाथ दे के तो कोई बात नहीं करेगा। ट्रैफिक वार्डन्स जस्ट बात करेगा तो अपने टिकट, जी आपकी चालान टिकट जारी होगी। और एक और बात अहम, ये अब जो इनके ई चालान जारी होना शुरू हो गए हैं ना, जो सिर्फ डिवाइस से निकालते हैं, ना तो उससे ये पता चल सकता है ये किस वार्डन्स ने किया है, ना ये पता चल रहा है किस पॉइंट से किया है। ये भी जो है ना ऐड करना बड़ा जरूरी है, ताकि पता चले कि किस पॉइंट पे किस वार्डन ने उसका नाम मेंशन हो। ये भी चीज सर बड़ी देखने की जरूरत है। जनाब मोहतरम सीटीओ साहब, आप डॉक्टर भी हैं, और दूसरा CSS करने वालों पे अखलाकियात जो हैं वो ज़्यादा लागू होती हैं, क्योंकि CSS करने वाले कई हज़ार लोगों में से चंद 2, 4, 5, 10 लोग होते हैं जो इस इम्तिहान में कामयाब होते हैं। अगर आप लोग इस तरह की अखलाकियात, इस तरह के मेरिट से हट के कानून बनाएंगे, अपने मातहत को इस तरह की आजमाइशों में डालेंगे, तो ये सरासर उनके साथ ज्यादती है, अवाम के साथ ज्यादती है। वज़ीर आला पंजाब साहब, काफ़ी रिक्वेस्ट आपसे जो रिक्वेस्ट की हैं हमने, उम्मीद भी है कि आप इस पर इम्प्लीमेंट भी करेंगे, और जो जितने मामलात मसदा एसोसिएशन के हैं वो जल्द अज जल्द हल भी करवाएंगे। DG एक्साइज साहब, आपसे गुजारिश है, आपके नोटिस में ऑलरेडी सारा कुछ है। DG एंटी करप्शन साहब, ये जो 15 अरब रुपए का करप्शन कहानी है, इसको खाली फाइल की हद तक कहानी ना रहने दिया जाए, इसको कंप्लीट किया जाए। इसमें जो लोग मुलव्वस हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, और जो लोग इसमें फंस चुके हैं, जो मजदूर तबका है, जो ड्राइवर हजरात हैं, जो मालकान हैं, जिन्होंने 1-1 रुपया इकट्ठा करके उधार पकड़ के कभी किसी तरह मैनेज करके ये गाड़ियाँ ख़रीदी हैं, खुदारा उनका ख्याल किया जाए। उनके जो मामलात हैं जो मेरिट के हैं उनको जल्द अज जल्द हल किया जाए, ताकि वो एहतजाज धरनों को छोड़कर अपने बच्चों का रोज़गार तलाश करें, अपने बच्चों की हक हलाल पर परवरिश करें, और आपको दुआएं दें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज़।